الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقينا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین آمین آمین. جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے نون ساکن اور تنوین کے بارے میں دیکھا تھا الحمدللہ. نون ساکین اور تنوین کیا ہے؟ نون ساکین یعنی کہ نون کے اوپر جو دال کے جیسا ایک رہتا ہے سمبل، اس کو جو ہے نون ساکین کہتے ہیں. سکون، جزم کہتی. نون کے اوپر جو دال کی طرح رہتا ہے اس کو جو ہے کیا کہتی؟ جزم، سکون یا ساکین کہتی. ٹھیک ہے، یہ دو طریقے سے ہوتا ہے قرآن میں. نون کے اوپر ایک راؤنڈ سرکل کے جیسا رہتا ہے یا تو ایک دال کے جیسا رہتا ہے. 2 ٹائپس میں رہتا ہے الحمدللہ. اور تنوین کیا ہے؟ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو. اور اس کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ فتحتین، کسرتین، ضمتین. فتحتین، کسرتین، ضمتین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اور نون کے اوپر جو جزم لگا ہوا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ نون ساکین. نون ساکین اور تنوین کے بعد اب جو ہے 4 قاعدے میں بتائی. 4 قاعدے بتائی. ان دونوں کے بعد جو ہے یہ 4 قاعدے آئیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے الحمدللہ ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب نون ساکین اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں الحمدللہ. ہم نے دیکھا تھا اظہار، ادغام، اخلاف، اخفا. اظہار یعنی کہ ظاہر کرنا، ادغام ملانا، اخلاف بدلنا، اخفا اپنی آواز کو ناک میں چھپانا. اخفا کا مطلب خفی یعنی کہ چھپانا، اپنی آواز کو جو ہے چھپانا. تو الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے دیکھا اظہار کے بارے میں. اظہار کے بارے میں دیکھا. اظہار کیا ہے؟ نون ساکین اور تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا مخرج میں حرف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. حمزہ ہے، عین ہے اور غین خا. یہ 6 حرف جو ہیں تنوین یا نون ساکین کے بعد آ جائیں، کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ ہم اظہار کریں گے، وہاں پر غنہ نہیں کریں گے. اب نون کی صفت کیا ہے؟ نون اور میم کی صفت کیا ہے؟ غنہ کرنے کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور تنوین کی بھی یہی صفت ہے. لیکن یہ 6 حروف اگر ان نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر آ جائیں گے تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے ہم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو الحمدللہ ایگزامپلز بھی دیکھے تھے، جیسے کہ دیکھیں یہاں پر حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا کے ہم نے مثالیں دیکھی تھی. جیسے کہ نون ساکین کے بعد اگر حرف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، جیسے کہ یہاں پر آیا، دیکھیں یہاں پر دیکھیں من ہے، یہاں پر آخی، حمزہ ہے، نون ساکین کے بعد حمزہ ہے تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے. غنہ نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ من آخی. اور دوسرا ایگزامپل دیکھیں، من ہاد، وہاں پر غنہ نہیں کریں گے. من ہاد اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے. اظہار یعنی کہ ظاہر کرتے ہوئے زل سے زل ادا کرنے کی کوشش کریں گے. من ہاد. اب جیسے یہاں پر دیکھیں ایک ہی ورڈ میں آیا ہے
नून साकिन के बाद दूसरे कलीमे में भी आ जाए तो वहां पर, यहाँ पर देखिए एक ही कलीमे में आ रहा है अनअमत, सूरह फातिहा का वर्ड है ये अनअमत, इस तरीके से नहीं करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, अनअमत अनअमत, वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हा के साथ है, हा जो है हुर्फ हलकी में से है मन हर्रम। अब यहाँ पर देखें 5वां एग्जाम्पल मिन गैरिकुम, यहाँ पर इख्फा भी नहीं करेंगे, हम गुन्ना भी नहीं करेंगे, जाहिर करते हुए बगैर गुन्ने के करेंगे। देखिए यहाँ पर मिन गैरिकुम, समझ में आया? यहाँ पर देखें 6th एग्जाम्पल लिमन खशिया, लिमन खशिया, ये हुआ नून साकिन। नून साकिन के फायदे को हमने देखे, नून साकिन के बाद हुर्फ हलकी में से कोई एक हुर्फ भी आ जाए तो वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे, ये हमने नून साकिन का देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तनवीन में देखे आइनिन, आइन फतहा या सुकून आई, नून कसरतेन निन, आइनिन है, नून कसरतेन के साथ है, यहाँ पर क्या है हमजा है, आइनिन आनिया, आइनिन आनिया है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखें दूसरा एग्जांपल खौ मिन हाद, खौ, खौ फतह वाव सुकून खौ, मीम कसरतेन मिम, खौ मिम हाद, खौ मिम हाद, यहाँ पर मीम में गुन्ना नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखें मुहम्मदन अब्दुहु, वहां पर थोड़ी देर के लिए भी हम रुकेंगे नहीं, दन अब्दुहु इस तरीके से रुकेंगे नहीं, मुहम्मदन अब्दुहु, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नारुन हा, नारुन हा है, यहाँ पर रॉ दम्मतेन है, उसके फौरन बाद क्या है हा है, हुर्फे हलकी में से है। अब यहाँ पर देखें 5th एग्जाम्पल बा दम्मतेन के साथ है, उसके बाद वाले कलीमे में देखें यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है गैन है जो कि अदनल हलक से है, रब्बुन गफूर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शैइन है, उसके बाद हुर्फ हलकी में से एक हुर्फ आ रहा है तो वहां पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, जाहिर करते हुए पढ़ेंगे, जैसे कि शैइन खलक़ह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया होगा सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं आज की लेसन की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखें नून साकिन और तनवीन के का दूसरा फायदा जो है इदगाम, इदगाम, इदगाम बोले तो क्या मुदगम से निकला हुआ यानी कि मिलाना, इदगाम मिलाना, समझ में आ रहा है? इदगाम के कितने लेटर्स हैं 6 लेटर्स, जैसे कि इजहार के कितने लेटर्स थे 6, इसी तरीके से इदगाम के भी 6 लेटर्स हैं, जैसे कि या रॉ मीम लाम वाव नून, ये 6 लेटर्स है। इजहार की कितने लेटर्स 6, हमजा है आइन है गौन खा हुर्फ हलकी। अब ये जो है इसके भी 6 लेटर्स है और इसको जो है एक ग्रुप में मिलाकर उसको एक नाम दिया गया है, जैसे कि यरमलून, यरमलून, यहाँ पर गौर करें यरमलून, यरमलून जो है इदगाम के लेटर्स है या रॉ मीम लाम वाव नून, या रॉ मीम लाम वाव नून, अच्छे से समझ में आ गया? बोले मेरे साथ या रॉ मीम लाम वाव नून, 6 लेटर्स है यरमलून, ठीक है, समझ में आया? अब यरमलून को 2 में डिवाइड कर दिया गया, यरमलून को 2 में डिवाइड कर दिया गया। अब इसमें 2 में डिवाइड करके उनको एक नाम दिया गया, जैसे कि इदगाम माआ गुन्ना, यानी कि इदगाम माआ गुन्ना बोले तो गुन्ना किया जाता है इन हुर्फों में, इदगाम बिला गुन्ना, समझ में आ रहा है? बिला गुन्ना मतलब नो गुन्ना, गुन्ना वहां पर नहीं किया जाएगा, जैसे कि हमने इजहार में पढ़े थे, समझ में आ रहा है? तो
इस इदगाम मा गुन्ना में कितने लेटर्स हैं? 4। या मीम नून वाव, ये 4 लेटर्स हैं। और इदगाम बिला गुन्ना में 2 लेटर्स हैं, लैम और रॉ। लैम और रॉ, इसमें जो है गुन्ना नहीं किया जाएगा। तनवीन और नून साकिन के बाद या मीम नून वाव, अगर कोई भी 4 लेटर्स में से कोई एक लेटर भी आ जाए तो वहां पर हम गुन्ना करेंगे। नून साकिन और तनवीन के बाद लाम रॉ अगर आएगा तो वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? बिला गुन्ना और मा गुन्ना। देखिए यहाँ पर इदगाम मा गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका सब समझना जो है बहुत आसान कर दे, आमीन। और यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब यहाँ पर देखें, मा गुन्ना को जो है यमून कहेंगे, यमून। क्यों? या मीम नून वाव को अगर जमाएंगे तो क्या हो जाएगा? यमून हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखें, याद रखने के लिए बहुत इजी है। यरमलून, यरमलून यानी कि या रॉ मीम लैम वाव नून, यरमलून ही 6 लेटर्स। अब ये 6 लेटर्स को 2 में तकसीम कर दिया गया। लैम रा जो है बिला गुन्ना, यमून जो है मा गुन्ना। ये समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, इसको कैसे अदा करते हैं इंशाल्लाह हम देखेंगे। चलें, या का एग्जाम्पल्स देखेंगे। या मीम नून वाव जो है मा गुन्ना है, ठीक है, इसमें गुन्ना किया जाता है। जैसे कि मय्युमीनु, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, मय्युमीनु। अब यहाँ पर देखें, या का एग्जाम्पल जो है तनवीन में, खैरन यरह, खैरन यरह, खैरन यरह, खैरन यरह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। नून साकिन और तनवीन के बाद हुर्फे हलकी में से यानी कि हमजा हा, आइन हा, गाइन खा, कोई एक हुर्फ भी आ जाएगा तो वहां पर हम गुन्ना किए बगैर जाहिर करते हुए पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो है इदगाम, इदगाम में जो है 6 लेटर्स हैं। इदगाम का मतलब जो है मिलाना। अब इदगाम क्या है, कैसे होता है, किन हुर्फों पर होता है? ये 6 लेटर्स में होता है। या रॉ मीम, या रॉ मीम लैम नून वाव में होता है। और इसको जो है 2 में तकसीम कर दिया गया है। यमून यानी कि या मीम वाव नून जो है मा गुन्ना है, लैम रॉ जो है बिला गुन्ना है। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल हमने या का देखा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखें, मीम का देखें, मीन नून साकिन है मीन में, और ये उसके फौरन बाद जो है मीम आ रहा है जो कि मा गुन्ना है। नून साकिन के बाद मीम आ रहा है, तो कैसे करेंगे? मिम मिस्लिही, मिम मिस्लिही। और देखें तनवीन पर जाएंगे। देखें, रसूलुम में क्या है? लाम दोमतैन के साथ है, तनवीन है। रसूलुम मिनल्लाह, गुन्ना करेंगे, रसूलुम मिनल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखें, नून में देखेंगे, मिन मिन, नून साकिन के बाद नून आ रहा है जो कि इदगाम का लेटर है, तो वहां पर हम गुन्ना करेंगे, मिन। अब यहाँ पर देखिए तनवीन में, तनवीन के बाद जो है नून आ रहा है। देखिए यहाँ पर नून एग्जाम्पल जो है तनवीन के साथ है, आमिलतुन नासिबह, आमिलतुन नासिबह, नासिबह, ठीक है। और वाव में देखें,
नून साकिन के का एग्जाम्पल देखो, नून साकिन के बाद वाव आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे? म्यौवल, म्यौवल। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर देखिए तनवीन के साथ इलाहुन वाहिद, इलाहुन इलाहुन वाहिद। ठीक है, ये हुआ गुन्ना। यमून में या मीम नून वाव इदगाम का है, इदगाम मा गुन्ना का है। ये यमून में नून साकिन के बाद ये 4 लेटर्स भी अगर आ जाएंगे तो वहां पर हम गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। और बिला गुन्ना को चलें देखें, बिला गुन्ना, नो गुन्ना, गुन्ना नहीं किया जाएगा वहां पर। अब देखिए लाम का एग्जाम्पल, नून साकिन है फर्स्ट एग्जाम्पल में, नून साकिन है, नून साकिन के बाद लाम आ रहा है, तो कैसे अदा करेंगे? मिल्लदुनका, मिल्लदुनका। यहाँ पर क्या करेंगे? नहीं, हम गुन्ना नहीं करेंगे, मिल्लदुनका। अब यहाँ पर देखिए तनवीन में देखें, कसरतैन के साथ है, यानी कि तनवीन के साथ है, और उसके फौरन बाद जो है लाम आ रहा है, तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। जन्नतिल्लहुम, जन्नतिल्लहुम। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद रॉ जो है क्या है? बिला गुन्ना है, कैसे अदा करेंगे? मर्रहिम। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भी वहां पर रुकेंगे नहीं। मर्रहिम। यहाँ पर देखें ऐशति रादिया, ऐशति रादिया। यहाँ पर ऐशति रादिया इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? हम विदाउट गुन्ना आगे बढ़ते चलेंगे। ऐशति रादिया, ऐशति रादिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको, सबको अच्छे से समझ में आया जी? अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा और एक मर्तबा देख लेते हैं, डाउट है जी? समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नो, समझ में नहीं आया, ठीक है, चले अब एक टाइम रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नून साकिन और तनवीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नून साकिन और तनवीन? नून साकिन जो है इसको कहते हैं नून के ऊपर जो जज्म लगी हुई है। देखिए यहाँ पर नून साकिन, समझ में आ रहा है? नून साकिन देखें इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, और दूसरा जो है इस तरीके से होगा। नून जो है एक राउंड शेप में एक रहेगा, सुकून के बजाय जो है इस तरीके से रहेगा। कुरान में 2 तरीके से हमें मिल जाएगा। ठीक है, नून साकिन और तनवीन। तनवीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तनवीन? तनवीन जो है 2 जबर 2 जेर 2 पेश को कहते हैं, जो कि अरबिक टर्म में क्या कहते हैं इसको? फतहतेन, कसरतेन और दम्मतेन। 2 जबर 2 जेर 2 पेश। अब नून साकिन और तनवीन के बाद तनवीन के बाद के कायदे हैं ये। नून साकिन और तनवीन के बाद के कायदे हैं, यानी कि नून साकिन और तनवीन के कायदे, ये अच्छे से याद रख लो। 4 कायदे हैं, 4 कायदे हैं। 4 रूल्स आर देयर। ओके, पहला जो है इजहार, इजहार, इजहार में नो गुन्ना। इदगाम, इदगाम क्या है? मिलाना। इखलाब, बदलना। इख्फा, छुपाना, अपनी आवाज को नाक में छुपाते हुए पढ़ना। अब इजहार को हमने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, इजहार को देखे थे हम। तनून साकिन और तनवीन के बाद हुर्फे हलकी, यानी कि हमजा हा, आइन हा, गाइन खा जो है, ये 6 लेटर्स आ जाएंगे कुरान में, तो वहां पर विदाउट गुन्ना इजहार करते हुए, जाहिर करते हुए पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें देखे थे, और एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। हमजा है, आइन है, गाइन खा में, जैसे कि मैं पहला एग्जाम्पल, मिन अखी, मिन हाद, अनअमत। नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, नून साकिन के बाद देखिए यहाँ पर आइन आ रहा है। यहाँ पर देखिए नून साकिन है, और नून साकिन के बाद जो है क्या आ रहा है?
ہا رہا ہے, نون ساکین کے بعد ہا رہا ہے. یہاں پر دیکھیں نون ساکین کے بعد غین آ رہا ہے تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے. واٹ از دا میننگ آف غنہ؟ دیکھیں غنہ بولے تو تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ پر ہم کو ٹھہرنا ہے, بھن بھنانا, جیسے کہ ان, 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 اس طریقے سے کرنا. اوکے, اسی جگہ پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکنے کو غنہ کہتی. اوکے, غنغنا یعنی کہ اپنی آواز کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر سٹاپ کرنا اور وہاں پر سٹاپ کرنا, غنہ کہتی. اور یہ غنے میں بھی 4 ٹائپس ہیں, کہاں پر غنہ کیا جاتا ہے, کہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا, اس کے 4 قاعدے ہیں. یہاں پر دیکھیں نون ساکین کے بعد حرف حلق ہی آ جائے گا تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے ہم, ٹھیک ہے, غنہ نہیں کریں گے. یہاں پر کلیئرلی آپ کو جو ہے ایگزامپل کے طور پر بتا دیا گیا ہے. اور تنوین, یہاں پر دیکھیں تنوین ہے, نون دیکھیں یہاں پر نون کسرتین کے ساتھ ہے, نون جو ہے کسرتین کے ساتھ ہے. اس کے بعد کیا ہے, آنیہ, آنین, حمزہ فتحہ, نون کسرہ نی, یا فتحہ سکون ہے, آنیہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نون یا ہا, نون یعنی کہ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے یہاں پر دوسرے کلمے کے سٹارٹنگ میں, تو ہم کیا کریں گے, وہاں پر غنہ کیے بغیر پڑھ لیں گے. من اخی عین آنیہ, من ہاد خا من ہاد, انعمت محمدا عبدہ, من حرم. دیکھیں یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا, بغیر غنہ کے ہم نے پڑھ لیے. یہ ہوا ظاہر کرنا. ادغام کا یعنی کہ تنوین اور نون ساکین کا پہلا قاعدہ جو ہے اظہار ہے, جہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھا نیکسٹ رول کیا تھا, ادغام. ادغام میں بھی 2 ٹائپس ہی, ادغام مع غنہ, ادغام بلا غنہ ہے. ادغام کے کتنے لیٹرز تھے, جیسے کہ ہم نے اظہار میں پڑھے تھے حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. اب ہاں حجرہ, اس میں بھی جو ہے 6 لیٹرز ہیں, یرملون یعنی کہ یا میم نون واو لام را. اب یا میم نون واو میں جو ہے غنہ کیا جاتا ہے, لام اور را میں جو ہے وداؤٹ غنہ, وہاں پر غنہ نہیں کرتے. اور ہم نے ایگزامپل بھی دیکھے, یہاں پر دیکھیں ایگزامپل نمبر 1, من یؤمنو, یہ نون ساکن کا ہو گیا, من یؤمنو, من یؤمنو, من مثلہ, من مثلہ, من نار, من نار, من میوال, میوال. ٹھیک ہے, چیک کرے کیا میں غنہ کر رہی ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے, من یؤمن من مثلہ. جی ساؤنڈ سب کے لیے کلیئر ہے؟ کوئی ٹیکسٹ کر کے بتا دے. ہاں جی الحمدللہ, کسی سسٹر کا کوئی نیٹ ورک ایشو ہوگا تو چیک کر لیں. جی جی الحمدللہ. تو یہاں پر دیکھیں نون ساکین کے بعد نون آ رہا ہے, یعنی کہ یہ ادغام کا ایک لیٹر ہے. من نار, میوال, یہاں پر ہم نے غنہ کیا. اور تنوین کے بعد دیکھیں یا آ رہا ہے, رن جو ہے خیر یرح, رسول من اللہ, عاملۃ ناصبہ, الہ واحد. ٹھیک ہے, اور بلا غنہ, نو غنہ یہاں کریں گے, جیسے کہ من لدنک, میم کسرہ لام شدہ مل, یہاں پر ہم جو ہے نون کو چھوڑ دیں گے اور لام کو ملائیں گے اور وداؤٹ غنہ کریں گے, جیسے کہ میم کسرہ لام شدہ مل, لام فتح لا, مل. ٹھیک ہے, من لدنک. یہاں پر دیکھیں جنات لہم, جنات لہم,
مرحمة عيشة راضية. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پلیز آپ مجھے پوچھیں آخر میں، کلاس کے آخر میں انشاءاللہ. اب چلتے ہیں آج کی سورت کی طرف جو کہ سورۃ القریش. الحمدللہ سورۃ القریش. سورۃ القریش مکی سورہ ہے یہ الحمدللہ. جی سورۃ القریش لیسن نمبر 8 سورۃ القریش. سب جو ہے ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ جو ہے تعوذ اور تسمیہ کر لیں گے، پڑھ لیں گے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر بسم اللہ، بسم اللہ، بس سیٹی کی آواز، ملہ لفظ جلالہ باریک پڑھیں گے. بسم اللہ ہر اقصل حلق سے ہا کاٹیں گے. بسم اللہ الرحمن رحمان رہ جریہ نفس یعنی کہ ہماری سانس جو ہے جاری ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر دیکھیں رحمن الرحیم 2 جگہ پر بھی ہا کو اچھے سے کریں. رحمان میں جو ہے ہا ساکن کے ساتھ ہے، رحیم میں کسرہ کے ساتھ ہے اور یائے مدہ کے ساتھ بھی ہے. اور یہاں پر مد عارض لی سکون ہے، مد عارض وقفی بھی ہے. تو یہاں پر آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کی جو بھی ہو سکتا ہے 2 4 6 حرکات کے برابر کھینچ کر وقف کر سکتے ہیں. اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. تو یہاں پر دیکھیں لام کسرہ لی، حمزہ کسرہ یا سکون ای، لی یہاں پر تھوڑا کیا کریں گے ہم کھینچیں گے، اور کھڑا زبر ہے اس کو 2 حرکات کھینچیں گے. فا شفتان کا لیٹر ہے، اچھے سے ادا کریں. بہت ساری بہنیں جو ہے ہونٹوں کو ٹچ کر لیتے ہیں اپنے دانت. دیکھو فا اس طریقے سے نہیں، ہمارے ثنایا اولیہ کے جو اوپر کے دانت ہیں ہمارے ہونٹ کے پیچھے ٹچ کرنا ہے. فا 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 فی فو فا فی فو. لی اب یہاں پر دیکھیں خوف اقصل لسان سے خوف کو موٹا پڑھیں گے. ایک دوسرا جو ہے خوف کو کیسے ادا کریں گے، ہماری زبان کی جڑ کو جو ہے اوپر بلند کرتے ہوئے پڑھیں گے. اس کو باریک نہیں پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے. خوف را فتح یا سکون کیا مد اپلائی ہو رہا ہے یہاں پر لین حرف لین. رئی شین کسرتین شن. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے
तफशी है यहाँ पर, शीन को अच्छे से, शीन की क्या है, स्पेशल क्वालिटी है, स्प्रेडिंग, क्या क्या होता है, हमारी आवाज जो है स्प्रेड होती है, बहुत प्यारा प्यारा वर्ड है, ये लेटर है, ठीक है। देखिए, अश, इश, उश, खुरैश, लिईलाफी खुरैश, लिईलाफी खुरैश, तफशी है। ये बहुत स्पेशल क्वालिटी वाला लेटर है, इसको अच्छे से करें। लिईलाफी खुरैश, खुरैश। हमारी आवाज जो है स्प्रेड होना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि परफ्यूम जब आप करते हो, प्रेस करते हो, कैसे वो जो है स्प्रेड होता है, हर तरह स्प्रेड होता है, नहीं वैसे ये स्प्रेड होना है, इश, उश, अश, रईश, लिईलाफी कुरैश, ठीक है। अब दूसरा जो आयत है, देखें, अलीफ खंजरिया है, देखिए यहाँ पर अलीफ के नीचे खड़ा जेर है, लाम के ऊपर खड़ा जबर है, इन दोनों को दो दो हरकत के बराबर खींचते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, ईला, 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 ठीक है, ईला, ईला, फी, ईला फी, हिम, हिम, ईलाफिहिम, ईलाफिहिम। अब देखें यहाँ पर रिह, रिह, हा को जैसे कि हमने रहमान पढ़े थे, यहाँ पर रिह, रिह, रिहला, रिहला, तश, रिहलतश, ता और शीन को मिलाएंगे, तश, तश। यहाँ पर भी शीन को अच्छे से अदा करेंगे, रिहलतश। अब हा कहाँ वाला है, बस वस्तल हलक वाला है, हा को अच्छे से करें, रिहलतश, शीता, शीता, शीता। अब यहाँ पर मद आ गया, मद वाजिब, कौन बताएगा, मद वाजिब मुत्तसिल, मद वाजिब मुत्तसिल, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर खींचेंगे हम, कितने हरकत खींचेंगे, कितनी हरकत खींचेंगे, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है 4 हरकत लंबा करेंगे, जैसे कि देखिए, ईलाफिहिम रिहलतश शिताई, शिताई, ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, वस्सैफ, ठीक है, वस्सैफ, वस्सैफ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। तो देखिए, वह सौद को मोटा पढ़ेंगे, इसको जो है सैफ नहीं पढ़ेंगे, सैफ नहीं, वस्सैफ, वस्सैफ, ठीक है। तो देखिए, ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। अब यहाँ पर मद्दे आरिद लीन, यानी कि यहाँ पर भी हम खींचते हुए लंबा करते हुए वक्फ करेंगे, जैसे कि मद्दे आरिद में किए थे हम, यहाँ पे मद आरिद लीन आ रहा है, यहाँ पर भी हम खींच कर लंबा करके वक्फ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, गौर करने वाली बात क्या है, ईलाफिहिम, यहाँ पर दो दो हरकत खींचेंगे, रिह में थोड़ा रहा को जो है अच्छे से करना है, जैसे कि हम पढ़े थे रहमान, इस तरीके से यहाँ पर री कसरा के साथ है, तो रिहलतश शिताई, तशिताई है, और वस्सैफ, सौद भी सीटी वाला लेटर है और मोटा है, मोटा बनाना चाहिए इसको, वस्सैफ,
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ठीक है? समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए यहाँ पर आयत नंबर 3, फल या, अब यहाँ पर भी फा को अच्छे से करें। फल या फतह आइन सुकून या। जैसे कि सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए यअबुदु, फलयअबुदु, फलयअबुदु। इसको आइन को पढ़ते समय जो है झटका नहीं देंगे और आइन को मोटा नहीं करेंगे। यअबुदु इस तरीके से भी नहीं, यअबुदु इस तरीके से भी नहीं, झटका नहीं देंगे, इसको आराम से पढ़ेंगे। देखिए फलयअबुदु, फलयअबुदु रब्ब, रब्ब र को मोटा पढ़ेंगे, रब्ब हाज़ल, हाज़ल हा जो है अक्सल हलक वाला है, हाज़ल बैत, बैत। जैसे कि यहाँ पर भी हुर्फे लीन आ रहा है तो वहां पर भी हम खींचकर लंबा कर कर पढ़ेंगे। देखिए हाज़ल, फलयअबुदु रब्ब हाज़ल बैत। अब यहाँ पर की जाने वाली गलती क्या है, हाजा में जा पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा। जाल का मखरज पढ़ें, दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान जो है बाहर आने पर, यानी कि हमारी जुबान की नोक जो है ऊपर सनाया उलिया के दांतों के किनारों को टच करना है। हाज़ल बैत, हाज़ल बैत, बैत यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैत, घर, घर को कहते हैं। ठीक है, हाज़ल बैत फलयअबुदु रब्ब फलयअबुदु रब्ब हाज़ल बैत। बस चाहिए कि वो इबादत करे उस घर के रब की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें देखें, या को अच्छे से करें, आइन को अच्छे से पढ़ें, रब्बा में शिद्दत के साथ पढ़ें क्योंकि बा जो है दो बन गया है मुशद्दा लग जाने की वजह से। यहाँ पर क्या करेंगे, दो करेंगे, रब्बा हाज़ल बैत। ठीक है, आयत नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लज़ी, यहाँ पर भी देखें जाल का मखरज जो है प्रॉपर से करें। अल्लज़ी, 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 अल्लज़ी। ठीक है, अल्लज़ी, अल्लज़ी ऑतो, ऑतो। अब यहाँ पर क्या है, मद मुनफसिल है, इसको खींचते हुए पढ़ेंगे 1 2 3 4। अल्लज़ी ऑतो, ऑतो क्या है, तो है। कौन सा लेटर है ये, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा? तो पर क्या है, तो पर खलखला है, तो इसको खलखला करते हुए पढ़ेंगे। इस तरीके से नहीं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रौनक, आपने सही जवाब दिया। हाजिरा आपने भी सही बताया। ऑतो में क्या है, खलखला है। इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑतो, ऑतो, ऑतो। तो जो है मोटा है, मोटापन है, मोटी है इसकी सिफत, तो में जो है हम मोटा भी करेंगे और जो है क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, खलखला भी करेंगे। ऑतो, ऑतो, ऑतो। सनाया उलिया के जो दांत थी हमारे, उसके गम पार्ट्स में जो है हमारी जुबान की नोक टच करने पर तो दल त अदा होता है, तो वहां पर टच करेंगे हम तो, और मोटा करेंगे और खलखला करते हुए पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए ऑतो, ऑतो हम, ऑतो हम, ऑतो, ऑतो, ऑतो। कोई भी इसमें गलती ना करें क्योंकि ये बहुत आसान है। देखें तो में जो है खलखले की सिफत पाई जाती है। देखें ऑतो हम, ऑतो हम। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुन्ना करेंगे। ऑतो हम मिन, मिन में क्या है, मिन में क्या है, यहाँ पर क्या है, गुन्ना है। गुन्ना है, गुन्ना है। मिन में क्या है, क्या है, इख्फा है, यानी कि इख्फा करेंगे। मिन, मिन अपनी आवाज को छुपाएंगे। अच्छे से गौर करें, देखें ये बड़ी आयत भी है
اور جو ہے اس میں بہت سارے رول اپلائی ہو رہے ہیں. اوتو میں کیا ہے؟ خلخلہ ہے، ہم میں غنہ، من میں اخفا، جوعیوں کیا ہے؟ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے جو کہ ادغام کا رول ہے، ادغام مع غنہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ادغام مع غنہ. جوعیوں، جوعیوں اگر ہم ملائیں گے تو کیا ہوئے گا؟ اس کو ادغام مع غنہ ہوگا. ادروائز اسٹاپ کریں گے تو عین میں ساکن لگا دیں گے، جیسے کہ من جوع، اس طریقے سے. نہیں، ہم ملا کر چلیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ من جوع وآمنهم من. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جوعوں میں اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں ساکن لگا کر، ادروائز ہم لے کر چلیں گے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ وآمنهم، ہم میں کیا ہے؟ غنہ ہے. اور من خوف میں اظہار حلقی جو کہ ہم نے لاسٹ ویک پڑھ لیا تھا. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر نوٹ کریں، دیکھیں یہاں پر کہاں والا ہے؟ حرف حلقی میں سے ہے، عدل حق سے ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. من خوف، من خوف اس طریقے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ٹھیک ہے؟ من خوف. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، چلے. الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. لإيلاف قریش. تعوذ تسمیہ کو لے لیتے ہیں، یہاں پر زوردار پٹاخ سے ہے. جی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہوگی، معاف کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.